Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atme Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. So now we will start chapter number 5, factors and multiplies. Now we will start exercise 5.7. But before starting our exercise, first we will see what you had learned in our last classes. So what you had learned in the last classes? First you had learned about the multiplies. Then property of multiplies. How many property of multiply? 5 property of multiply. Then odd and even number. Which is the odd number and which is the even number? A number which is a multiple of 2. जो नंबर 2 के मल्टीपल है उसको हम बोलते हैं इवन नंबर. फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा. मतलब सपोज यहाँ पे हमने 2 लिया है, ठीक है. 2 10 नंबर लिया है. अगर 2 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन कितना मिलता है? 5 और रिमाइंडर 0 मिलता है. मतलब ये 10 क्या है? इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है. A number which is not multiple of 2 is called odd number. For example 1, 3, 5, 7. Suppose हमने 3 लिया है, ठीक है. 3 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे. 3 2 के साथ डिवाइड होता है क्या? नहीं. ये अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिलता है. तो ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 के साथ डिवाइड नहीं होता है. ये 2 का मल्टीपल नहीं है. ओके. देन नेक्स्ट इज द फैक्टर. व्हाट इज द फैक्टर? अ फैक्टर ऑफ नंबर डिवाइड द नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर. फैक्टर इज ऑफ नंबर डिवाइड द नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर. फॉर एग्जाम्पल 15. ओके. सपोज हमने 15 को 3 और 5 के साथ क्या किया है? डिवाइड किया है. तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता है. तो ये क्या है? 3 और 5 हमारा फैक्टर्स है 15 के. देन नेक्स्ट इज दिस इज द फैक्टर ट्री डायग्राम. देन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. विच इज द प्राइम नंबर एंड विच इज द कंपोजिट नंबर? Number which have only 2 factor. Number which have a 2 factor 1 and number itself are called prime number. Number which have a 2 factor 1 and number itself is called prime number. Then composite number. Number which have a more than 2 factor are called composite number. ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा नंबर है उसके फैक्टर से उसको हम composite number बोलते हैं. Then next is the property of factors. How many? 4 property of factors. Then twin prime number. Which is the twin prime number? 2 prime number which differ by 2 are called twin prime number. Then common factor. Okay. Which is the common factor? Suppose we are taking 2 numbers, for example 12 and 15, and we are take out the factor. Okay. Now that what is the common in these 2 numbers? 1 and 3 is the common factor. So this is common factor. And SCF means highest common factor. So which is the highest from 2, 1 and 3? 3 is the highest. So what is the SCF? SCF is the 3. Then co-prime number. 2 number which have only 1 as the common factor are called co-prime number. Okay. So which number is common? Only 1 is the factor common, which is called co-prime number. Then lowest common multiple means LCM. After take out multiples, then which is the number is common, and then after take out in common which is the small number. छोटा नंबर जो है उसको हम बोलते हैं lowest common multiple, मतलब LCM. Then yesterday we had learned about the prime factorization. What is the prime factorization? A factorization in which every factor is prime is called prime factorization of number. Prime factorization किसको बोलते हैं? जो भी नंबर है उसके पूरे जितने भी फैक्टर्स है वो क्या चाहिए? हमें प्राइम नंबर चाहिए. उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन.
फॉर एग्जाम्पल 48 को हमने जब तक फैक्टर निकाला है, जब तक क्या नहीं होता है, हमारे जो फैक्टर्स है वो क्या नहीं निकलते, प्राइम नहीं निकलते हैं, तब तक हमने क्या किया है, हमने इसके फैक्टर निकाले. सो फर्स्ट 48 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 24. 2 इंटू 24 48. ओके, देन नाउ 24 इज़ द इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे. तो 2 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 12 मिलता है. ठीक है, नाउ दैट 2 इज़ द प्राइम नंबर. अभी ये 12 को हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है. तो 2 डिवाइडेड बाय 6, ये क्या हो गया, अभी 2 इज़ द प्राइम नंबर, 6 है, 6 को हमें फिर से डिवाइड करना है क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है. देन 2 3, नाउ दैट 6 इज़ द प्राइम नंबर. अभी 48 के फैक्टर्स क्या है, 2 2 2 2 एंड 3. दिस इज़ द फैक्टर्स ऑफ 48. सो हमने क्या किया है, उसको डिवाइड किया है जब तक कि हमारा कौन सा नंबर नहीं आता है, प्राइम नंबर नहीं आते, हमारे पूरे फैक्टर प्राइम नंबर नहीं आते. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.7. But before starting our exercise, I will show you one video about our topic. Prime factorization. Today, let us study a new concept called prime factorization. What is prime factorization? Prime factorization is to write a number as a product of its prime factors. There are two methods to find the prime factorization of a given number. 1. Prime factorization by repeated division. 2. Prime factorization by building a factor tree. Let us learn them one by one. Prime factorization by repeated division. Find the prime factorization of 180. To express 180 as the product of its prime factors, we have to begin with the smallest prime number that divides 180. As the number 180 is an even number, it is divisible by 2. We write 2 to the left of 180 and dividing it by 2, we get 90, which we write below the dividend 180. Now we have to divide the quotient 90 with the smallest prime number. As the number 90 is an even number, it is divisible by 2. On dividing 90 by 2, we get 45, which we write below 90. Now we have to divide 45 by the smallest prime number. As it is an odd number, so it is not completely divisible by 2. So now we move ahead to the next prime number, that is 3. Number 45 is completely divisible by 3. 45 divided by 3 is 15. Write 15 below the 45. Number 15 is also completely divisible by 3. That is, 15 divided by 3 is 5. Write 5 below the 15. Now we have 5 as the dividend. It is itself a prime number. So, lastly, on dividing 5 by 5, we get 1. Write the 1 below the 5. Now we have 1 as a quotient. Now we write the prime factorization of 180 as the product of all the prime numbers that we have on the left. Thus, the prime factorization
of 180 is 2 into 2 into 3 into 3 into 5. So, we have to follow 3 steps while finding the prime factorization by repeated division method. They are: Step 1. Divide the number by the smallest prime factor. Write the quotient below the dividend. Step 2. Continue to divide the quotient with the smallest possible prime number till the quotient is 1. Step 3. Write the number as the product of its prime factors arranged in ascending order. Now, let us solve. All of you nicely understood prime factorization by division method. First we will start our exercise 5.7. So question number 1. Find the prime factorization of given number by making factor tree. ये कौन सी मेथड है? फैक्टर ट्री. सो फर्स्ट लुक एट देयर 2. 48 को 2 के साथ डिवाइड हो सकता है. यस, बिकॉज 40 इज द इवन नंबर. अगर हम 2 को 48 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें कितना क्वेश्चन मिलता है? 2 1 2, 2 2 4, देन 0 8. ओके, नाउ 8 4 8. सो विल गेट रिमाइंडर 0 मिल गया. सो हमारा क्वेश्चन क्या है? 24. सो 2 इंटू 24 हमें क्या मिलता है? 48. ओके, नाउ दैट 2 इज द विच इज नंबर? प्राइम नंबर. ठीक है, अभी ये 24 को डिवाइड करेंगे. अगर हम 24 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 12. कितना मिलता है? 12. ओके, नाउ दैट 2 इज़ द प्राइम नंबर. अभी ये 2 है, उसको हम डिवाइड करेंगे. नाउ 2 डिवाइडेड बाय 6. अगर 6 के साथ 2 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमें क्या मिलता है? क्वेश्चन 6 मिलता है. सो दैट 2 इज़ द नाउ प्राइम नंबर. अभी ये 6 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 3 कितना मिलता है? 6 मिलता है. सो अभी नाउ ऑल इज़ द प्राइम नंबर. सभी प्राइम नंबर है. सो व्हाट इज़ द आवर फैक्टर? 2 2 2 2 एंड 3. दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 48. 48 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 48. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 इज सेम. ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 सेम है. So example number 2 and 3, this is the homework for you. Now I am solving example number 4. What is the example number 4? 108. So 108 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है. तो हम क्या करेंगे? 2 के साथ डिवाइड करेंगे 108 को. So 2 5 10. Okay, now we will take out 8. So 8 4 2 4 8. So we'll get remainder 0. So कितना हो गया? 54. अगर 2 को 54 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलता है? 108. नाउ दैट 2 इज़ द प्राइम नंबर. अभी 54 को हम डिवाइड करेंगे. 54 क्या है? इवन नंबर है. तो हम फिर से इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे. अगर 54 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन कितना मिलता है? 27. ओके, नाउ दैट 27 इज़ द ऑड नंबर. 27 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है. तो हम क्या करेंगे? 3 के साथ डिवाइड करेंगे. अगर 3 के साथ हम 27 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन मिलता है 9 मिलता है. 3 इंटू 9 27. नाउ दैट 3 इज़ द प्राइम नंबर. अभी 9 को हम डिवाइड करेंगे. 3 इंटू 3 कितना होता है? 9. सो दिस इज द विच नंबर? प्राइम नंबर. सो 108 के हमें क्या मिला है फैक्टर्स? 2 2 3 3 एंड 3. दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 108.
example number 2 and 3 similar. Okay, so example number 2 and 3, this is the homework. Okay, and this is right in your textbook. Now next topic, prime factorization by division method. Prime factorization can also be done by repeated division by prime number. इसको क्या बोलते हैं? repeated division by prime number. As show, find the prime factorization of 20. यहाँ पे क्या दिया है? 20 को डिवाइड हमने क्या किया है? डिवीजन मेथड से हमने सॉल्व किया. ये क्या है? 20 है. अगर 20 इज़ द इवन नंबर, 20 क्या है? इवन नंबर है. अगर हमें 2 के साथ 20 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? क्वेश्चन क्या मिलता है? 10 मिलता है. तो हम क्या करेंगे? जो हमारा डिवाइज़र है, ठीक है, हम कहाँ लिखेंगे? डिविजिबल क्या है हमारा? 2 है, तो 2 हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे जो हमारा डिविजिबल है, और हमारा जो क्वेश्चन मिला है वो हम नीचे लिखेंगे. ओके, सो 10 इज़ द क्वेश्चन एंड 2 इज़ द डिविजिबल. नाउ दैट 10 आल्सो, विच इज़ नंबर 10? 10 आल्सो इवन नंबर है. अगर 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन कितना मिलता है? 5 मिलता है. सो हम क्या करेंगे? जो हमारा डिविजिबल है वो हम कहाँ लिखेंगे? 10 के साइड में लिखेंगे, और जो हमें क्वेश्चन मिला है वो नीचे लिखेंगे. नाउ दैट 5 इज़ द विच नंबर? दैट प्राइम नंबर है. अगर 5 के साथ डिवाइड होगा तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, और 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 मिलता है. ओके, सो लुक एट देयर. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20. स्टेप नंबर 1, डिवाइडेड 20 बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. सबसे छोटा प्राइम नंबर जो भी है उसके साथ डिवाइड करेंगे. सो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है. द क्वेश्चन कितना मिला है हमें? 10 मिला है. देन स्टेप नंबर 2, डिवाइड द 10 अगेन 2 को हमने फिर से 10 को हमने फिर से डिवाइड किया है 2 से, मतलब प्राइम नंबर से. तो हमें क्वेश्चन कितना मिला है? 5 मिला है. तो 5 इज़ द प्राइम नंबर. 5 अभी क्या है? ये प्राइम नंबर है, तो कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर. अभी 5 क्या होगा? प्राइम नंबर है तो डिवाइड नहीं हो गया, क्योंकि हमारा व्हाट इज द रूल्स ऑफ प्राइम नंबर? A prime number which have only 2 factor, 1 and itself number. प्राइम नंबर डिवाइड नहीं होता है, ठीक है. फर्दर देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन इज 20 के फैक्टर क्या है? 2 to 5. क्या है? 2 to 5. दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 20. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2. लुक एट देयर. विच नंबर? 30 नंबर. सो 30 को हमने क्या किया है? डिवाइड किया है 2 के साथ. सो हमें कितना मिला है? क्वेश्चन 15 मिला है. देन 15, दिस इज द ऑड नंबर. सो हम ऑड नंबर के साथ इसको डिवाइड किया है, मतलब 3 को डिवाइड किया है, तो हमें क्या मिलता है? क्वेश्चन 5 मिलता है. नाउ दिस इज 5 इज द प्राइम नंबर. सो हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे, सो हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है. लुक एट देयर. 30 इज डिवाइडेड बाय. 30 को किसके साथ डिवाइड किया है? 2 के साथ. 30 इज डिविजिबल बाय 2. 30 इज द डिविजिबल बाय 2 एंड द क्वोशंट इज द 15. क्वेश्चन क्या है हमारा? 15 है. 15 इज द डिविजिबल बाय 3. देन 15 ये किसके साथ डिविजिबल है? 3 के साथ है. द क्वोशंट इज द 5. हमें क्वेश्चन कितना मिला है? 5 मिला है. 5 इज द विच नंबर? 5 इज द प्राइम नंबर. 5 इज द प्राइम नंबर. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30. 30 के क्या फैक्टराइजेशन है? 2, 3 एंड 5. दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 30. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 3 इज द सेम. एग्जाम्पल नंबर 3 इज द सेम. सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू. ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है. आपको इसके फैक्टर निकालने हैं यहाँ पे ही टेक्स्ट बुक में, और आपको यहाँ पे आंसर लिखना है. आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड. सो व्हाट इज द होमवर्क? एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 2 and 3. दिस इज द होमवर्क, एंड एग्जाम्पल नंबर 3 दिस आल्सो होमवर्क.
Thank you and have a nice day.